So, good morning students. Today we are going to start with next element. Next element is phosphorus. So if we talk about the phosphorus, then phosphorus exists as tetraatomic molecule. किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है phosphorus? Tetraatomic molecule के फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है. There are different allotropic forms of phosphorus. So before discussing the allotropic forms of phosphorus, first of all we should understand what are allotropes. ठीक है, तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? ऐसी फॉर्म्स, किसी भी एलिमेंट की ऐसी फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या हो, डिफरेंट हो, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो. ठीक है, इस तरह की फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स. सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट same chemical properties or similar chemical properties. So if we talk about the allotropic forms of phosphorus, then phosphorus can exist into three allotropic forms. First one, white phosphorus. Next one, red phosphorus, and then black phosphorus. We will discuss white phosphorus, red phosphorus, and black phosphorus one by one. So first of all, here we are going to discuss white phosphorus. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? White phosphorus. This is the structure of white phosphorus. ये जो है, ये स्ट्रक्चर है किसका? White phosphorus का. White phosphorus के केस में देखें हम तो each phosphorus atom is bonded with three other phosphorus atoms. ठीक है, किसी भी phosphorus atom की अगर हम बात करें तो हर phosphorus atom जो है वो तीन bonds यहाँ पे फॉर्म कर रहा है. और जैसा कि पहले हमने पढ़ा, जो भी यहाँ पे ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, इनके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसने यूज कर लिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. एंड ऑल दीज बॉन्ड्स विल बी व्हाट? कोवलेंट बॉन्ड्स. किस तरह के बॉन्ड्स होंगे? ये कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे. ऑल दीज आर कोवलेंट बॉन्ड्स. ये किस तरह के बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं? यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं. और अगर हम यहाँ पे फास्फोरस इस बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना होता है इस मॉलिक्यूल के केस में? दिस विल बी ऑफ 60 डिग्री. कितना होगा ये? 60 डिग्री का होगा. देन इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस व्हाइट फास्फोरस, अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हाइट फास्फोरस की, सो व्हाइट फास्फोरस इज अ सॉफ्ट, ट्रांसलूसेंट एंड वैक्सी सॉलिड. किस तरह का है? सॉफ्ट है, ट्रांसलूसेंट है एंड waxy solid है. and if we talk about its smell, then it will have garlic like smell. किस तरह की स्मेल होती है इसकी? garlic like smell होती है. then it can be, white phosphorus is soft in nature and it can be cut with the knife. then if we talk about the melting point of white phosphorus, the melting point of white phosphorus is 317 Kelvin. and if we talk about the boiling point of white phosphorus, then it is 553 Kelvin. then if we talk about its solubility, then it is insoluble in water and it is soluble in benzene, ammonia and CS2, carbon disulfide. इस तरह के solvents में ये क्या है? Soluble है. Means it will not form aqueous solution. Aqueous solution form नहीं करेगा. तो किस तरह के solution form करेगा? Non aqueous solution form करेगा. अर्लियर हमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी स्टडी कर रखा है. नॉन एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है? अदर देन वाटर. ठीक है. एंड अनदर रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट फास्फोरस इज इट इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ द फास्फोरस एंड इट हैज द एबिलिटी टू ग्लो इन डार्क एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज केमिल्यूमिनेसेंस. ये जो ग्लोइंग प्रॉपर्टी है व्हाइट फास्फोरस की, इसको क्या बोलते हैं? केमिल्यूमिनेसेंस. ठीक है. So all these are the properties of a white phosphorus. So white phosphorus has low ignition temperature. The ignition temperature of white phosphorus is 303 Kelvin. If we talk about the ignition temperature of white phosphorus, then it is 303 Kelvin. It is very low and even at a room temperature it can easily catch fire. And it combines, white phosphorus easily combines with metals to form metal phosphides. तो मेटल्स के साथ, रिएक्टिव मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करके इजिली क्या फॉर्म कर देता है? मेटल फोस्फाइड्स जो है ये फॉर्म कर देता है. सपोज इट इज रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल, सपोज इट इज रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम मेटल, और इट इज रिएक्टिंग विद कैल्शियम मेटल, देन इट विल फॉर्म corresponding phosphide. It will form
corresponding phosphide of these metals. So Na3P2 and sodium is reacting with phosphorus to form sodium phosphide. Magnesium is reacting with phosphorus to form magnesium phosphide, and calcium is reacting with phosphorus to form corresponding phosphide calcium phosphide. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कैल्शियम फॉस्फाइड बन रहा है. सो इजिली रिएक्ट कर सकता है. मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है व्हाइट फॉस्फोरस जो फॉस्फोरस की. ठीक है, और ये इजिली रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. अब जैसे यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर की अगर हमने बात की तो फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन के साथ इजिली रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर सकता है, P4O10 फॉर्म कर सकता है. यहाँ पे 5O2 का एडिशन होगा एंड 303 केल्विन पे ये इग्निशन हो रहा है, सो इट कैन रेडीली फॉर्म P4O10. ठीक है, सो ऑल दीज आर द रिएक्शंस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस. So students, a reaction of next जो प्रॉपर्टी है फास्फोरस की, that is reaction of phosphorus with nitric acid. तो ये रिएक्शन हमने कल पढ़ा भी था. नाइट्रिक एसिड it will change into NO2 plus H2O plus nascent oxygen. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एक्ट कर रहा है. 2NO2 आ जाएगा वाटर और 3 2 6 2 2 4 1 5 and 1 6. एक नेसेंट ऑक्सीजन जो वो प्रोड्यूस हो रही है. अब फास्फोरस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, कितने नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, 10 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म कर रहा है, P4O10. और ये 10 नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, आगे ये जो P4O10 बना इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाती है वाटर की प्रेजेंस में, 6 वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, और ये क्या फॉर्म कर देगा, H3PO4 4 मॉलिक्यूल से फॉर्म कर देगा. अब अगर हम बात करें 10 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, 10 नेसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, P4O10 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, P4O10 यहाँ पे कंज्यूम हो गया. ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी P4 प्लस 10 टू सा कितना हो गया 20 HNO3 गिव राइज टू 4 H3PO4 प्लस 10 टू सा 20 NO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल देखोगे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे, 6 कंज्यूम हो गए हैं, तो कितने बच जाएंगे 4 H2O. ठीक है, इसी तरह से देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विद हेलोजेंस. हेलोजेंस में मैं यहाँ पे जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो कर रहा हूँ फास्फोरस का, सो P4 प्लस Cl2 इट कैन फॉर्म PCl3. क्या फॉर्म कर सकता है, PCl3 फॉर्म कर सकता है. सो बैलेंस करोगे इक्वेशन को, 4 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे PCl3 के, कितने क्लोरीन रिक्वायर्ड है, 4 3 12 क्लोरीन मीन्स 6 Cl2 का एडिशन करेंगे. नाउ इफ दिस क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ये क्लोरीन जो है ये एक्सेस में प्रेजेंट है, देन व्हाट विल हैपन, P4 प्लस Cl2 इट विल फॉर्म PCl5. और यहाँ पे अगर बात करें 4 मॉलिक्यूल्स का एडिशन होगा, 20 क्लोरीन होगी, 10 Cl2 का एडिशन हो जाएगा. ठीक है, सो P4 प्लस 10 Cl2 गिव राइज टू 4 PCl5. तो यहाँ पे PCl3 बन रहा है, यहाँ पे PCl5 बन रहा है. ये ट्राइक्लोराइड है और ये पेंटाक्लोराइड है. ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पे फास्फोरस के निकालेंगे तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा फास्फोरस, और इसमें जो है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा. भाई अगर हम बात करें तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है. वो आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि NCl5 की एग्जिस्टेंस के लिए जो है नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं. सो इन मेनी टाइम in the question paper, in the board question papers, you may face this type of question that NCl5 does not exist while PCl5 exists. While nitrogen and phosphorus both elements belong to what? Group 15 है. ठीक है, दोनों के दोनों एलिमेंट्स नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं. NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है. तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि नाइट्रोजन के केस में वैकेंट d ऑर्बिटल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है. फास्फोरस के केस में 3d वैकेंट ऑर्बिटल्स जो है वो अवेलेबल है, 3d ऑर्बिटल्स जो है वो अवेलेबल है. सो इसके केस में बॉन्डिंग जो है एक्सटेंड की जा सकते हैं d ऑर्बिटल्स में. तो
PCl5 जो वो एग्जिस्ट करता है। जबकि हमने नाइट्रोजन का रिएक्शन किया था तो उसमें क्या फॉर्म किया था, सिर्फ NCl3 ही फॉर्म किया था, NCl5 उसके केस में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द chemical reactions of phosphorus, white phosphorus. Now we are going to start with next topic, that is red phosphorus. But before discussing red phosphorus, there is one more reaction, that is disproportionation reaction of phosphorus. Yes, so a reaction with sodium hydroxide. So a reaction of phosphorus, व्हाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक्वा सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सो P4 व्हाइट फॉस्फोरस प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सोडियम का ये कंपाउंड है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ ए फॉस्फीन। ये जो फॉस्फीन है ये गैसियस स्टेट में लिबरेट हो जाती है, दिस इज फॉस्फीन। तो क्लियर कट बात है, यहाँ पे सोडियम हाइपोफॉस्फाइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में जो है वो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, फॉस्फीन। जिस तरह से आपके पास अमोनिया था वैसे ही क्या है, PH3 है, फॉस्फीन है, NH3 था और ये क्या है, PH3 है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो फास्फोरस है, फास्फोरस की मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ये टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगी, 0 होगी, फॉस्फीन में अलग है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। सो एक ही एलिमेंट की जो वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट जो है वो किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो एग्जिबिट करता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, फॉस्फीन में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। और अगर आपके पास जैसे NaH2PO2 है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड है, और अगर इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। सोडियम के ऊपर चार्ज +1 +2 इंटू +1 प्लस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट लेट कर ली X प्लस ऑक्सीजन के ऊपर 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 + 2 + x -4 इज इक्वल टू 0। 2 and 1 3 और माइनस का 4 मीन्स x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, +1 होगी। तो एक ही एलिमेंट जो है, अब देखो इसकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो आ रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो +1 भी है ऑक्सीडेशन स्टेट और -3 भी है। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो what are disproportionation reactions? These are the reactions in which a single element exhibit variable oxidation states. So students, next जो है हमारे पास, next is red phosphorus। और रेड फास्फोरस के केस में सी ऑलरेडी ये एलोट्रोपिक फॉर्म है फास्फोरस की, तो फॉर्मूला तो इसके केस में सेम रहेगा। सी दिस इज व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को जब हमने 573 केल्विन पे हीट किया इन इनर्ट एटमोस्फेयर में, देन इट विल चेंज इनटू रेड फॉर्म। ठीक है, तब ये किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो रेड फास्फोरस है उसका इस तरह का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता था। जो व्हाइट फास्फोरस था उसके केस में तो ये एक ही तरह की यूनिट एग्जिस्ट करती थी, बट जो रेड फास्फोरस है उसके केस में ये लिंक्ड यूनिट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। सेंटर में जो बॉन्ड है वो इसके केस में नहीं होगा, वो पॉलीमेरिक फॉर्म जो है वो इसके केस में एग्जिस्ट कर रही है। एज फार एज द प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, सो रेड फास्फोरस जो है इट इज अ हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड विदाउट एनी स्मेल। इसके केस में कोई पार्टिकुलर स्मेल जो है वो नहीं होगी। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करें, इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। अगर व्हाइट फास्फोरस की बात करें तो पॉइजनस था, गार्लिक लाइक स्मेल थी उसके केस में, बट इसके केस में ना तो कोई स्मेल है एंड इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। नेक्स्ट अगर बात करें, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CH2। सी जो व्हाइट फास्फोरस था वो भी इनसॉल्युबल था वाटर में, बट दैट वाज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। बट ये जो है वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में क्या है, इनसॉल्युबल है। एंड इट इज डेंसर देन व्हाइट फास्फोरस। अगर इसकी डेंसिटी की बात करें देन इट इज डेंसर देन व्हाइट फास्फोरस एंड इट डज नॉट ग्लो इन डार्क। जो कैमिल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज कन्फाइंड टू द व्हाइट फास्फोरस, बट रेड फास्फोरस में इट विल नॉट शो ग्लोइंग प्रॉपर्टी, इट विल नॉट ग्लो इन डार्क एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैमिल्यूमिनेसेंस। तो ये प्रॉपर्टी इसके केस में नहीं होगी। देन इट हैज हाई इग्निशन टेम्परेचर। जो रेड फास्फोरस है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू व्हाइट फास्फोरस, और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कितना होगा, 543 केल्विन। बाकी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन वही होगा जैसे फास्फोरस है P4 मॉलिक्यूल, तो क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट इनकी क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट जो फास्फोरस ही है। तो जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर सकता है, P4O6 फॉर्म कर सकता है या फिर P4O10 फॉर्म कर सकता है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेड फास्फोरस। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ब्लैक फास्फोरस की बात करें तो ब्लैक फास्फोरस जो है, रेड फास्फोरस को अगर हम हीट करें 803 केल्विन पे, रेड फास्फोरस को अगर हीट किया एट 803 केल्विन इन अ स्टील ट्यूब, देन इट विल चेंज इनटू अल्फा ब्लैक फास्फोरस, व्हाइल if white phosphorus is heated at 473 Kelvin but at high pressure, that is 4000 to 12,000 atmospheric pressure, then it will change into beta black phosphorus. After this we are going to discuss the structure of black phosphorus and thereafter the properties of black phosphorus. So if we talk about the structure, then the black phosphorus will have this type of structure, and यहाँ पे जो PPP बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो 99 डिग्री का होगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फास्फोरस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक फास्फोरस। So students, if we talk about the properties of black phosphorus, then as far as the properties of black phosphorus are concerned, so it has black metallic luster. ठीक है, शाइनिंग सरफेस होगा, ब्लैकिश जो है स्ट्रक्चर होता है इसका, मेटालिक लस्टर इसके केस में होती है। जिस तरह से मेटल्स के केस में चमक होती है वैसे ही इसके केस में ब्लैक मेटालिक लस्टर जो है वो ऑब्जर्व होती है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट 860 केल्विन है। अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो इट इज द मोस्ट थर्मल स्टेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस एंड even it do not catch fire even at a higher temperature, and it is a moderate conductor of heat and electricity. It is a moderate conductor of heat and electricity. We cannot say that it is a good conductor or we cannot say that it is a bad conductor of heat and electricity. So moderate, it is a moderate conductor of heat and electricity, and as far as the reactivity is concerned, it is the least reactive form of phosphorus. What is it? It is the least reactive form of फास्फोरस। सबसे कम रिएक्टिव फॉर्म है फास्फोरस की, कौन सी, ब्लैक फास्फोरस। तो हमने व्हाइट फास्फोरस स्टडी किया, ब्लैक फास्फोरस स्टडी किया, रेड फास्फोरस भी स्टडी किया। ठीक है, तो आउट ऑफ व्हाइट, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस कौन सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म है, व्हाइट फास्फोरस, और लीस्ट रिएक्टिव कौन सी है, ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक फास्फोरस। बाकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन इसका क्या है, फास्फोरस के एटम्स प्रेजेंट है, तो केमिकल रिएक्शंस इसके वैसे ही रहेंगे, बट ये कम रिएक्टिव है। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो है वो किसके होते हैं, वो व्हाइट फास्फोरस के ही होते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फॉस्फीन PH3, जिसकी प्रेपरेशन हमने जो है वो पहले स्टडी भी की थी, किस तरह से हमने रिएक्शन किया था व्हाइट फास्फोरस का एक्वस एल्कली के साथ। तो फॉस्फीन जो थी वो फॉर्म हुई थी हमारे पास, तो रिएक्शन जो है प्रेपरेशन फॉस्फीन की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम फॉस्फीन की बात करें तो फॉस्फीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो लेबोरेटरी मेथड की इसमें भी कैटेगरी में भी आता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो है। तो जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया, मेरे पास है व्हाइट फास्फोरस, इसको मैंने ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
aqueous solution, aqueous means what, water भी present है, then it will form sodium hypophosphite NaH2 PO2 plus PH3। ये रिएक्शन आपने पढ़ा भी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में मैंने आपको बताया ये। सो 3NaOH, एंड अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 3 to the 6 and 3 9 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 3 ही मॉलिक्यूल्स ये बनेंगे। दिस विल बी द बैलेंस्ड इक्वेशन। जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो ये बन रहा है फॉस्फीन, ठीक है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस रिएक्शन, आई हैव टोल्ड यू दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट मेथड हो गया, व्हाइट फास्फोरस से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, फ्रॉम इट कैन बी प्रिपेयर्ड, जो फॉस्फीन है वो प्रिपेयर की जा सकती है फ्रॉम मेटल फॉस्फाइड्स। सो मेटल फॉस्फाइड्स, जैसे फॉस्फाइड्स की सिंथेसिस भी हमने स्टडी की थी। सो मेटल फॉस्फाइड्स में आगे जैसे हमारे पास है सोडियम फॉस्फाइड Na3P, या फिर हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, या फिर हमारे पास और फॉस्फाइड है जैसे मैग्नीशियम फॉस्फाइड है Mg3P2। तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या क्या रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस मींस व्हाट, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, जैसे फर्स्ट केस में हाइड्रोलिसिस कैरी आउट की, ये बन जाएगा NaOH और साथ में फॉस्फीन जो है लिबरेट होगी। इसके केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा और फॉस्फीन जो है वो लिबरेट होगी। नेक्स्ट अगर हमारे पास रिएक्शन है तो इसके केस में जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा और साथ में फॉस्फीन जो है लिबरेट होगी। बाकी आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल आयन रिक्वायर्ड है, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है, 3 फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया प्रेपरेशन ऑफ फॉस्फीन फ्रॉम मेटल फॉस्फाइड्स, ठीक है। सो एक और रिएक्शन है जिससे हम फॉस्फीन जो वो प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम फॉस्फोरस एसिड। सो थर्ड मेथड इज फ्रॉम फॉस्फोरस एसिड। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फॉस्फोरस एसिड। सो यहां पे जैसे H3PO3 है, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, एंड इसकी जब डिकम्पोजिशन होगी देन इट कैन फॉर्म H3PO4 प्लस PH3। इसके 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ये फॉर्म हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल जब किसका फॉर्म हो रहा है, फॉस्फीन का। इसको भी आप बैलेंस कर सकते हो। 4 3 12 हाइड्रोजन, 3 3 9 एंड 3 12 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। 4 फास्फोरस 3 यहाँ पे है, 4 फास्फोरस भी बैलेंस्ड है। 4 3 12 ऑक्सीजन, 4 3 12 ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन बैलेंस दिस इक्वेशन। सो फ्रॉम फॉस्फोरस एसिड ये बन गया आपके पास फॉस्फोरिक एसिड, प्लस साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, फॉस्फीन जो है वो फॉर्म हो रही है। सो ऑल दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन एंड रिएक्शंस ऑफ फॉस्फीन। सो स्टूडेंट्स, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज अ कलरलेस गैस। It is a colorless gas with unpleasant odor. Unpleasant odor, ठीक है। और गार्लिक लाइक स्मेल होती है इसके केस में, टिपिकल गार्लिक लाइक स्मेल। And it is a poisonous gas. Poisonous gas है and heavier than air. And अगर हम solubility की बात करें तो it is slightly soluble in water. It is slightly soluble in water. And अगर डेंसिटी की बात करें तो इसके केस में वेपर डेंसिटी होती है दैट इज 70,
and it is heavier than air. So all these are the physical properties of phosphine. Physical properties में आ गया colorless nature, आ गया colorless gas है, unpleasant odor है, garlic like smell है, poisonous gas है, slightly soluble in water, completely water में soluble नहीं है. और अगर vapor density की बात करें तो vapor density इसके केस में 17 है. It is slightly heavier than air. Air से क्या है, ये slightly heavier है, क्योंकि एयर में मैक्सिमम कंपोजिशन किसकी है, नाइट्रोजन की है. नाइट्रोजन का मास कम होता है, उसकी वेपर डेंसिटी कम होती है. इसके केस में वेपर डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए ये एयर से क्या है, हैवियर है. सो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन. नाउ इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फॉस्फीन लिख रखी है सेंटर में. बाकी हम डिफरेंट जो भी कंपाउंड्स हैं उनके साथ जो है इसके रिएक्शन जो वन बाय वन जो करते जाएंगे. सो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. pH3 हीट किया. हीट मीन्स व्हाट, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है. थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स व्हाट, इट विल चेंज इनटू व्हाट, इट विल चेंज इनटू फास्फोरस एंड हाइड्रोजन. थर्मल डिकम्पोजिशन से किसमें चेंज हो जाएगी, फास्फोरस और हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगी. जैसे मैं यहाँ पे pH3 को Cl2 के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है PCl3 फॉर्म हो सकता है, PCl5 फॉर्म हो सकता है. अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो क्या बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मैं PCl3 फॉर्म कर रहा हूँ, साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा, HCl. ठीक है, 3Cl2 के साथ ट्रीट किया, 3HCl निकल जाएगा और PCl3 फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत है नहीं. और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास Ag3P सिल्वर फॉस्फाइड, Ag3P आ जाएगा. और अगर HBr के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा, PH4 पॉजिटिव, Br नेगेटिव. ठीक है, और यहाँ पे अगर HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो फॉस्फोनियम क्लोराइड बन जाएगा, PH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. और HI के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पे बन जाएगा PH4 पॉजिटिव, ठीक है, I नेगेटिव, ये फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाएगा. और अगर कॉपर सल्फेट के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉस्फाइड फॉर्म होगा, Cu3P2. ठीक है, सो ऑल दीज आर द रिएक्शंस ऑफ फॉस्फीन. और अगर हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं इसको, देन इट कैन फॉर्म H3PO